Why films? Because I love films. It's one of the things that I really love, so therefore. Very jealous, and because this is very bad, and this was not there when we were struggling and trying to be filmmaker. This kind of platform and opportunity, and but I'm glad this kind of platform is given to you to showcase your talent. And some of the scripts came to me, and not many. I think just 2-3 scripts came to me. They are brilliant, but as I said that day, it's a short film, so don't try to do too much, and don't try to tell the story of a whole film in this 10 minutes. Sometimes we think we can squeeze in, and because the one line of a big story, I think that day was giving example of what Romeo and Juliet, just boy and girl, it's just you can't do it in 10 minutes, but sometimes. So that is what I have seen, because लगता है कि 10 मिनट में मैनेज कर लेंगे हो जाएगा, तो कहीं पे सोल चले जाती है बंदी. So that was my only brief to my team, and maybe Vikram, if you have any other brief, you can give them. So I've actually read all 6 scripts, and I think the only 2 scripts came. They thought I'm not worth reading this thing. So yeah. No, they emailed me on that. No, the subjects are very good. They are very unique. They've all taken the Kolikiti idea very well. I think at some level we are taking themselves a little too seriously as filmmakers, but that's okay. This is the age and this is the method. We all did that. It's got it's a good thing. But I'm actually completely in concurrence with them. I'm very jealous. This is something that we never had. This is something that is also so much easier platform. And 10 years later, I think we'll have some outstanding filmmakers here. Just putting in, we'll have 100 scripts to choose from. I think that's a great situation to be in. Now, I'm very excited the way the tangent, you are taking Kolikiti, and the way you are thinking, and taking this topic and taking it. And this is what we were hoping when we decided on this name Kolikiti. So, and we were hoping that this will happen, this magic will happen, and people will have different interpretation of this title, and will come up with interesting scripts. So, even the 3 scripts have, all 3 different interpretations, and I was very happy with it. And see, I think because you all, for example, I was just hearing from different people that you all thought this was. He discovered it later that I want to filmmaker, so is he, and you're from IIT. Sorry, my mobile, wrong time. So, see, it's in filmmaking is in correctly art form, and यही एक लाइन है जिसमें ये काम आता है जो ना मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो यही पे काम आता है सबसे ज़्यादा. तो मुझे लगता है कि वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड यू आर लाइक दैट. सब कुछ बहुत थोड़ा आता है, किसी मास्टर नहीं कि फिर उससे डायरेक्टर बन जाओ, सबसे बेस्ट है. थोड़ी सी एक्टिंग की समझ है, थोड़ा सा कैमरा की समझ है, थोड़ी सी एडिटिंग समझ लेता हूँ, थोड़ा सा म्यूजिक की समझ लेता हूँ, सब थोड़ा आता है, पूरा तो कुछ नहीं आता है. क्या करें, डायरेक्टर बन जाओ. दैट्स द बेस्ट थिंग. Well, with that news. भाई थोड़ा ऊपर चलेगा और इसका लेकर को बस मेरा कैमरा आ रहा है भाई. तू इस साइड पे या तू इस साइड पे. रोल साइलेंस प्लीज. नहीं, मैं तो वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था इस लोग मुझे बुलाएं, क्योंकि पिछले साल मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त अनुराग कश्यप and इम्तियाज़ अली, they have really great time doing this, mentoring this few students, filmmaking students. तो इस बार मैं was looking forward कि ऐसा मुझे भी कभी ऑफर आए. और मैं क्या होता है जब नए फिल्ममेकर्स, बड़ी फिल्ममेकर्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो जैसे बिग लर्निंग ऐसे बहुत कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं. क्योंकि मुझे लगता है, और जिस तरह से कहानियाँ आई हैं और मेरे पास ड्यूरिंग मेंटरिंग का, मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं बॉलीवुड के दरवाजे में खटखटाएंगे अपनी कहानियों के साथ. मुझे लगता है कि आज से 50 साल बाद और 40-60 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे, तो
तो हम लोग कहेंगे कि ये गोल्डन एरा था हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि इस तरह का समय मेरे ख्याल से बहुत पहले आया था, 60 के दशक में चल रही है और सराही जा रही है। आई एम जस्ट राइटिंग यही चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से। और अक्सर मैं इतना सारा राइटिंग इसलिए बोला हूँ क्योंकि एक स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, काफ़ी सारे लिख रहा हूँ। और मेरा एक अजीब सा प्रोसेस होता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कभी एक कहानी पकड़ के उसको नहीं लिखता हूँ और थोड़ा सा इंसिक्योर इंसान हूँ। जैसे 3 फिल्में लिख रहा हूँ तो उसमें से एक सिलेक्ट करता हूँ, ये बनानी पड़ती है। मैं 3 फिल्में लिख रहा हूँ तो उसमें फिर एक सिलेक्ट करूँगा, फिर उसे बनाऊँगा। क्योंकि आप सब जानते हैं जो किशोर वाली फिल्म जो अनाउंस हुई है वो काफ़ी वक्त लगेगा बनाने में, 10 साल शायद, लेकिन उसके पहले मुझे एक फिल्म बनानी है जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो उसकी तैयारी है, कुछ नहीं पता, कहानी नहीं पूरी हुई तो कैसे पता। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर लगता है मेकर्स को और डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को कि हाँ ये फिल्म को एक बार देख के दर्शकों की भूख नहीं मिटी है, शायद इसका एक सीक्वल देखना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं उन्हीं किरदारों को अलग रूप में, तो इसमें बुराई क्या है। आप मुझे कई लोग पूछें कि बर्फी का कुछ सीक्वल होगा, कभी नहीं बनेगा बर्फी का सीक्वल, वो कहानी तो खत्म ही हो चुकी है। लेकिन पूछते हैं लोग सर कुछ सीक्वल बनेगा क्या? बोला हाँ गुलाब जामुन लेके आ रहा हूँ मैं अगले साल। This may be a dumb question, but just on the Oscar paper is over. But then, if I ask your personal opinion, how important is Oscars for Indian cinema? Or really, the stamp of Oscars is important? Or सबकी अलग अलग राय है इस बारे में, अपनी राय देता हूँ। अभी मैं कोई राय दूंगा तो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप कोई राय देता नहीं हूँ। लेकिन ये राय कोई आज की राय नहीं है, ऑस्कर में जाने से पहले भी मैंने ये राय, मतलब अनाउंस होने से पहले ये राय दी थी। मुझसे बहुत पहले ना जेन कैम्पबेल जो है जिन्होंने ऑस्कर जीता है एक बार, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था, व्हाट्सएप में मुलाकात हुई थी उससे कि वाई यू इंडियंस आर सो क्रेजी अबाउट ऑस्कर। मेरे पास जवाब नहीं था। मैं सोचा हाँ वाकई वो तो मतलब बॉलीवुड का अवार्ड फंक्शन है, एक ही कैटेगरी है बेस्ट फॉरेन फिल्म का जिसमें कि 5 फिल्म सारी दुनिया से चुना जाता है, तो मुझे फेयर नहीं लगता है, एक बराबर का प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑस्कर बहुत मायने रखता है, ऑस्कर में जाती है पूरी दुनिया से उनके बारे में बात करती है, आपको एक बड़ा एंड रिकग्निशन मिलता है दुनिया भर में, क्योंकि वो मक्का है फिल्मों का, तो वहाँ से रिकग्निशन मिलता है तो सब बात करते हैं। लेकिन कहीं बराबरी का प्लेटफॉर्म नहीं लगता है, सारी दुनिया से सिर्फ 5 फिल्म चुनी जाती है और बाकी सारी फिल्में वहाँ की। तो जैसे मुझे कोरियन फिल्में, कोरियन डायरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कई सारे हॉलीवुड की फिल्में कोरियन फिल्मों से लेकर रीमेक बनाए, लेकिन आज तक कोरिया की कोई भी फिल्म नॉमिनेट नहीं हुई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं हुई? इतनी अच्छी फिल्म है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। और तो मुझे यही लगता है कि प्लेटफॉर्म बराबर है, बल्कि हम खुश थे जिस तरह से, बल्कि बाकी ओकिनावा फिल्म फेस्टिवल में जा रहा है और बुसान में सिलेक्ट किया गया, तो आई एम हैप्पी विद दैट। बजट डिक्लेयर किया रही बजट और आज सामान जनरल बजट डिक्लेयर हो जाएगा, किस तरह में खासकर एंटरटेनमेंट को लेकर पिछले 2 बार से कभी टिकट के प्राइसेस भी बढ़े हैं, टैक्स भी बढ़े हैं, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इससे पीछे से उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एम नॉट एम से फिल्में बनाता हूँ, सो ये मेरी बीवी जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा बता पाएंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है बहुत महंगी है हमारे देश में, ये हर साल से कहता आया हूँ हर प्लेटफॉर्म में कि इसको कम किया जाए, और कोई एक ही कंपनी एक लाइफ सेविंग बनाती है और बहुत महंगी बनाती है, उसको 10 कंपनी को दिया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको लोग को इतनी सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे लोग दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए ज़िंदगी गंवा बैठते हैं, तो यही करते हैं। बाकी तो एंटरटेनमेंट ऊपर नीचे हर साल होता रहता है।